بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اطاعت کے اثرات۔ حضور والا چونکہ ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے اور اس ذی الحجہ کے موقع پر بہت ساری وہ مناسبتیں کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی، پیغمبر کی اطاعت کر لی، صاحبان امر اور اولی الامر کی اطاعت کر لی، تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان اطاعت کے اثرات کو اپنے وجود پر مرتب کریں اور اپنے وجود پر محسوس کریں، کیونکہ جب تک کسی چیز کا اثر ہماری روحانیات اور معنویات پر نہیں پڑے گا تب تک ہم ان چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہیں۔ چونکہ بعض اوقات اگر آپ ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے تو ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، میں رسول کی اطاعت کرتا ہوں، میں صاحبان امر کی اطاعت کرتا ہوں، لیکن اگر اسی انسان سے پوچھئے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں، صاحبان امر کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے ہیں تو کیسے دین اور مذہب پر عمل پیرا ہے، تو کس طریقے سے؟ جب کچھ سوالات ہم اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے، اپنے وجدان سے، اپنے وجود سے سوال کریں گے، تب جا کر کے کچھ چیزیں جواب دینے کے لائق اور قابل ہوں گے۔ کیونکہ سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کٹگھرے میں لانے کے بجائے ہمیشہ دوسروں کی فکر میں اپنی انرجی کو صرف کرتے ہیں، اپنی طاقت اور قوت کو استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو سدھارنے اور سنوارنے کے ذیل میں، چکر میں انسان خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ کیا واقعی ہم سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، کیا واقعی ہم سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، کیا واقعی ہم بھی قصوروار ہیں۔ ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو تیار کرے اس لحاظ سے کہ اسے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر انسان واجبات کو ادا کرتا ہے، لیکن نماز کا اثر ہمارے اوپر کتنا پڑتا ہے؟ یقینی طور پر ہر انسان اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے، لیکن اللہ کا وجود
खुद इंसान के ظاہری जिस्म के ऊपर, ظاہری रख रखाव के ऊपर, ظاہر بینی میں کتنا اثر رکھتا ہے یہ ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ آج جو چیز ہمارے سماج میں چل رہی ہے وہ یہی کہ ہر چیز میں ایک نیا شوشہ پیدا کر دیا جا رہا ہے۔ جیسے اگر جمعہ پڑھنے کے لیے یوتھ کو، نوجوانوں کو دعوت دی جائے تو وہ بہت ساری چیزوں کو اس انداز میں لا کر کے رکھ دیں گے کہ سادہ لو انسان جو ہوگا وہ کنفیوژن میں چلا جائے گا۔ جیسے ہم نے بہت ساری باتیں اس پر تفصیل سے عرض کی ہیں کہ چونکہ ہم لوگ موقعیت کو نہیں جانتے، حالات کو نہیں جانتے، معصوم نے کسی حدیث کو کس زاویے میں، کس کنڈیشن میں، کن حالات میں پیش کیا یہ تو ہمیں نہیں پتا، بس ہم نے یہ دیکھا کہ یہ معصوم سے صادر ہوا ہے، یہ معصوم سے آیا ہے، معصوم نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ جیسے معصوم کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، لا جمعۃ الا مع امام عادل، کہ جمعہ ہے ہی نہیں ہے مگر یہ کہ امام عادل کے ساتھ، کہ اس کنڈیشن کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ ہم نے اس کے جوابات دیے ہیں اور بار بار اس چیز کی طرف یعنی توجہ دلائی جا رہی ہے تاکہ ہم جمعے جیسی عظیم نعمت سے غافل نہ ہوں۔ کیونکہ آج ہمارے پاس یکجا ہونے کے لیے، اکٹھا ہونے کے لیے، ایک جگہ پر آنے کے لیے، متحد ہونے کے لیے کون سا پلیٹ فارم ہے؟ یہ جو ایام اضحیٰ کے 2 مہینہ 8 دن جسے کہہ دیا جائے 68 دن ہمیں ملتے ہیں کل، 68 دن میں اگر آپ دیکھیے تو شیعوں میں جتنا زیادہ اتحاد پہلے پایا جاتا تھا اس سے کہیں زیادہ اختلافات ان دنوں میں پایا جاتا ہے۔ تو کون سا ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے ایک اتحاد کا مرکز جائے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ملتا ہے وہ ہے جمعہ، اور انسان کیا کرتا ہے اسی جمعے کو چاہے سادہ لوحی میں، چاہے انجانے میں، چاہے دشمن کے آلہ کار یا ایجنسیوں کے ایجنٹ بن چکے ہیں یا بن گئے ہیں، بہت ساری چیزیں جب آپ پلٹیے گا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں، ہم انجام کیا دے رہے ہیں، انجام کیا پانا چاہیے۔ یہ آج کا سوال نوجوانوں سے ہے، کیونکہ یہ نوجوان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، کسی علامہ سے کم نہیں سمجھتا، اور اگر علامہ کسی شہر کے رہنے والے اور وہ اسی شہر کا رہنے والا ہو تو اللہ ماشاءاللہ، آپ ہمیں نہیں جانتے، ہم فلاں لکھنؤ کے رہنے والے ہیں جہاں علم و ادب کا شہر ہے، آپ کا تو دور دور سے ادب سے واسطہ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، اگر خالی شہر کا نام ادب ہوتا تو کبھی مولا کوفے میں رہنے کے باوجود کوفیوں سے شکوہ نہ کرتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شکوہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ایماندار نہیں پائے جاتے تھے، نہیں، کوفی کربلا کے شہداء میں سب سے زیادہ تعداد کوفیوں کی ہے۔ لیکن مولا نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جتنی توقعات تھی اتنی توقعات پر کھڑے نہیں اترے۔ اسی چیز کو آپ اپلائی کیجئے اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں۔ آج ہر انسان اپنے آپ میں، اپنے وجود میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اگر ہماری بھاشا میں کہا جائے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہماری بھاشا میں کہا جائے تو کہیں گے ہر انسان اپنے یہاں پہ تورم خواہ بننا چاہتا ہے۔ صحیح ہے، وہ کسی سے کم نہیں ہے، اور خدا خاصہ اگر برادری میں آپس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تب دیکھیے کتنا سورس ہے، کتنا پاور ہے، کتنے، تب ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ کہاں پر انسان کے پاس
कितनी ताकत है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये नहीं है जो तुम कर रहे हो, हकीकत ये है चूंकि ये जो एक जुमे का बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि कम से कम ये जो 5.5 किलोमीटर के दायरे के लोग हैं ये एक जगह पर क्या हो, मुत्तहिद हो, इकट्ठा हो, यकजा हो। क्योंकि हमारे यहाँ शिया मजहब में फिक़े जाफरिया में 5.5 किलोमीटर का दायरा चौतरफा अगर लिया जाएगा, इतने चौतरफा में एक जुमा होगा। बकिया दूसरों के यहाँ तो हर मस्जिद में जुमा पढ़ा लेगा। क्यों हमारे यहाँ जुमे की अहमियत है? इसीलिए ताकि मैसेज जो दिया जाए कौम को, समाज को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, अच्छा बनने के लिए, नेक बनने के लिए, पैगंबर की सीरत को अपनाने के लिए, अहले बैत के तमाम किरदार को पहचानवाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूजन में ना जाए। और आज ये नौजवान क्या कर रहा है, एक नई नई शीखें उसे यूट्यूब से मिल गई, उसे मालूम दिया गूगल से मिल गई, उसे मालूम दिया सोशल मीडिया से मिल गई, उसे मालूम दिया इंस्टाग्राम से मिल गई, उसे मालूम दिया टेलीग्राम से मिल गई, उसे मालूम दिया फेसबुक से मिल गई। अब वो उसी को ला करके जितने शिया के ग्रुप होंगे हर ग्रुप में ला करके वो पोस्ट करेगा ताकि वो अपने आप को काबिलियत वाला जाहिर कर सके। साहब देखिए फला कितने बड़े आलिम हैं, जबकि इल्म से दूर दूर से वास्ता नहीं, लेकिन आलिम है। ये बहुत अहम चीज है समझने के लिए, क्योंकि जुमा एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन हमने एक हदीस को किया ला करके साहब ला जुमाता इल्ला मा इमामिन आदिलिन, खत्म। यानी अइम्मा की 250 साल जिंदगी को हमने क्या कर दिया, पानी फेर दिया। ये कह करके साहब इमाम आदिल के बगैर जुमा नहीं होगा। कभी आपने कंडीशन देखी है कि हमारे अइम्मा ने 250 साल जो गुजारे हैं किस कंडीशन में गुजारे हैं? यानी पैगंबर की वफात के बाद से लेकर के सन 260 हिजरी तक आई है। हमारे इमाम के गैबत से जाने से पहले कितने साल होते हैं? 250 साल। 250 साल में जो सलातीन का जमाना गुजरा है, जो जाबरीन और मुतकब्बिरीन का जमाना गुजरा है, जो उस वक्त के मालूम दिया, चाहे वो बनी उमैया वाले हो, चाहे वो बनी अब्बास वाले हो, जितने ये हुक्मरान गुजरे हैं, इन्होंने कौन सी इजाजत दी है कि शियत खुल करके अपने शिया होने का ऐलान करते? मजहब का फैलाना तो दूर की बात थी। कोई अगर अलवी कहलाता था, कोई अगर हुसैनी कहलाता था, कोई अगर इला आखिर दीगर नामों से पुकारा जाता था तो उसके ऊपर नजरें टिका दी जाती थी। अब ऐसे मौके पर अगर इमाम कहें कि साहब चूंकि जुमा किसके हाथों में है, दुश्मन के कारंदों के हाथों में है, और वो सरसख्त दुश्मन है अहले बैत के, क्या इनके इख्तिदा में जाकर के हम जुमा पढ़ेंगे ताकि ये धीरे 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 करके हमें अपनी तरफ मोड़ ले और अहले बैत के मोहब्बत से, इनके मिशन से, इनके लगाव से हमें धीरे धीरे करके क्या कर लें, दूर करते चले जाएं? कब इमाम ने मना किया था कि जुमा ही नहीं है? और उसके बाद एक चीज और हमारे यहाँ जो चीजें पेश की जाती हैं आप जानते हैं वो क्या है? वो यही कि चौथे इमाम ने कह दिया साहब कौन सी ईद, कौन सी बकरीद, कौन सी खुशी। हर चीज का एक लब्बो लुबाब होता है, हर चीज का एक मौका और महल होता है। ना ये कि अगर हमारे चौथे इमाम ने इस चीज को कह दिया तो अब बकिया इमाम साकित हो जाएंगे? इन्हें मौका मिलेगा तब पढ़ाएंगे, इन्हें जुमा वो होगा तब पढ़ाएंगे। इसीलिए हमारे छठे इमाम ने यानी जो चीजें जिंदा करने की कोशिश की है वो जानते हैं क्या है? वो यही है कि साहब पैगंबर की जिन अहादीस को भुला दिया गया था उन अहादीस को हमारे छठे इमाम ने, कि जब इनको वो मौका मिला है कि जब बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में लड़ रहे थे और वो तकरीबन 6 महीने 7 महीने के आसपास का बेहतरीन मौका इमाम को मिला, तो इमाम ने क्या काम नहीं किया?
इमाम ने काम किया, फिक़े जाफरिया की बेहतरीन बुनियाद रखी, जाफरिया बेहतरीन यूनिवर्सिटी वो की कि जिसमें मालूम दिया केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, यानी इन सारे फार्मूलों को किसने बताया? इमाम ने बताया। अब जब इमाम ने उस वक्त 4000 तालिबे इल्मों को एक साथ पढ़ाया, तो अब आप जरा सा सोचिए कि जब मौका मिला तो क्या इमाम ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? निभाई। और आज हम बहाना बना करके अगर इसी जुमे से, इसी दिन से छुटकारा हासिल करना चाहें तो हम किस जुमरे में होंगे? यही वजह थी कि छठे इमाम ने बहुत सारी अहादीस को पैगंबर से नकल किया और जुमे की इफादियत और उसके फायदे को बताया, और यही कहा कि देखो, जिसने जानबूझ करके 3 जुमा छोड़ दिया, जानबूझ करके, अमदन मुतअम्मिदन तर्क कर दिया, रूह ईमान उसके वजूद से खारिज हो जाती है। एक हदीस और सुनाता हूं इसी पर, आप सुनिए कि जब इंसान जिस वक्त गुनाह कबीरा को अंजाम देता है वो उस वक्त मोमिन नहीं रहता। जैसे एक इंसान जानी, जिनाकार, मोमिन तो दूर होने की बात है, मुसलमान नहीं रहता। इसी तरीके से गीबत करने वाला, इसी तरीके से चुगली करने वाला, इसी तरीके से झूठ बोलने वाला, जाइए देखिए रवायतें कितनी यानी बारीकियों से सारी चीजों को वो करती हैं। क्योंकि हम जब यानी पहले ही स्टेप पर मासूम की अहादीस पर बैन लगा देंगे तो बताएगा कौन, समझाएगा कौन, इसके फ्यूज और बरकत कौन वो करेगा? अभी जैसे हमारे यहां फैशन बहुत कुछ चलता है, इधर आकर के इमामों की शहादतें हैं, लोगों के स्टेटस देख लिए तो गाने लगे हुए हैं, इसके बाद भी शिया हैं, इसके बाद भी मोमिन हैं। क्योंकि जिसको इमाम की शहादत का ख्याल ना हो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इमाम ने सीधे सीधे यही कहा है कि हमारा शिया वो है जो हमारे खुशी में खुश और हमारे गम में मगमूम हो। तो क्या सिर्फ सारा गम जो है मौलाए कायनात से लेकर के तीसरे और चौथे इमाम तक का गम है, बकिया 5वें से लेकर के 11 इमाम का कोई गम ही नहीं है? या हम तारीख याद नहीं रखते? आप देखिए कितनों के अभी इसी तारीखों में आकर के देखिए, जैसे आज जनाब मुस्लिम की शहादत की तारीख है, सही है, मालूम दिया 7 तारीख 5वें इमाम की, यानी 5वें इमाम की शहादत की तारीख है। अब आप बताइए हम कहां पर गए? ये इमाम इसी को हज से अपने आप को उम्रे में तब्दील करेंगे, है तारीखें नहीं है, लेकिन हम अपने स्टेट और सर बेहतरीन गाना, आप जानते हैं गाने के बारे में रिवायतें क्या कहती हैं। अभी जैसे एक रिवायत हमने पढ़ी कि ज़िना करने वाला उस वक्त तक मुसलमान बाकी नहीं रहता, मोमिन तो दूर की बात हो गई। हदीस क्या कहती है? अल-ग़िना अशद्दु मिन ज़िना, गाना क्या है? ज़िना से ज्यादा बदतर है। और हमारे यहां फैशन हो गया है कि मालूम दिया अपने यहां खुशी का इजहार भी करेंगे तो खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, और उसके बाद बना बना करके सोशल मीडिया पे आजकल तो सब ऐप आ गया है, अपने आप को इजहार करेंगे। उसके बाद इनसे बड़ा पक्का मौलाई भी कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई अदादार भी नहीं है, और इनसे बड़ा कोई दुआए ज़हरा भी नहीं है। सोचिएगा जाकर के मेरी बातों को। जहां रिवायत कहती है कि गाने की अहमियत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, और हम हैं कहां, किस मंजिल पर हैं। और उसके बाद आज एक चीज और हमारे यहां राइश की जा रही है, अरे ज्यादा मजहब से ताल्लुक ना रखो, ज्यादा मजहबियत से वो ना रखो, क्योंकि जितने मजहबी हैं हमने देखा है सब कैसे हैं। यानी मालूम दिया
कि अगर कोई सुधरना भी चाह रहा है तो उसको कितने आसानी से हम ये कह देते हैं, अरे इन मौलवियों और लोगों के चक्कर में ना पड़ना, पहले ये आपस में इत्तेहाद कर ले, फिर आकर के हमें बताएंगे इत्तेहाद क्या होता है। क्या कहने हैं, इसका मतलब ये होगा कि क्या खाली मौलवियों के अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो आप यकजा नहीं रहेंगे? मौलवी अगर बेदीन हो जाएगा तो आप भी बेदीन हो जाइएगा, मौलवी अगर ईमानदार रहा तो आप भी ईमानदार रहिएगा? नहीं, हर इंसान को अपने अपने आमाल देखने हैं, अपना अपना नामा अमाल देखना है, अपने अपने तकाज़े देखने हैं, अपने अपने वाजिबात को देखना है, अपने अपने वाजिबात को अदा करना है, खुद को मुहर्रमात से बचाना है, बचना है। लेकिन हम तो एक दामन बचाना चाहते हैं साहब, न जुम्मे में जाएंगे न मौलाना नमदार की बातें सुनेंगे, क्योंकि खुतबों को तो यही कहा जाता है मौलाना क्या धोते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे धोबी हो गए हों। सोचिए, जब लैंग्वेज इस तरीके की होगी तो उसका असर कहां पर जाएगा। यानी वाज और नसीहत करने को अगर धोने का नाम होगा तो आइए मैं आपको कुरान की आयतें और तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूं, क्या कहोगे खुदा कितने मजे से धो रहा है? मैं भी हदीसें सुनाना शुरू कर दूं, उसके बाद कहिए साहब पैगंबर ने कितने मजे से असाब को धोया था, कहोगे? ये वही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो अब खाली बातों को दिल पर नहीं लेते, दिमाग पर लेते हैं, और दिमाग पर लेने वाला हमेशा चांसेस होता है बहकने का, और बहकने का चांसेस यही होता है कि सबसे पहली चीज ये है कि वो कहीं कुछ छोड़े या ना छोड़े, मस्जिद जरूर छोड़ेगा। सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट इसी चीज का पड़ता है, और जब इस चीज का पड़ता है उसके बाद हम दावा करें साहब या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अहले ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, अल्लाह की इताअत करो। कौन सी इताअत अल्लाह की कर रहे हो? अल्लाह ने कहा तुम मुत्तकी रहो, परहेजगार रहो, मोमिन रहो। हम कितने मोमिन हैं? जैसे पिछले हफ्ते हमने कहा था कि आने वाला जमाना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मालूम दिया जहां पर हम रात सोएंगे तो मोमिन, सुबह उठेंगे तो काफिर, सुबह से लेकर के दिन भर काफिर रहेंगे, शाम में मोमिन हो जाएंगे। वही जमाना धीरे 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 करके आ रहा है, क्योंकि लोगों को मिसगाइड करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। आज मोबाइल बहुत अच्छा है। एक इंसान से कहिए साहब हफ्ते में एक पारा पढ़ करके अपने मरहूमिन को बख्श दीजिए, ताकि आपके मरहूमिन को एक कुरान का सवाब दिया जाए। हफ्ते में बख्शा जाता है एक कुरान, लेकिन एक हफ्ते के टाइम में एक पारा भी बहुतों से नहीं पढ़ा जाता। वो क्या बताए, हमारे पास टाइम नहीं है। और इसी जिसके पास टाइम नहीं है, इसी को देखिए सोशल मीडिया पे कितने घंटे इसके पास टाइम है। जब तक इसकी आंखें थक नहीं जाएंगी तब तक मोबाइल हाथ से छूटेगा नहीं, और उसके बाद कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। समझ में आ रहा है? जबकि जो आज करोगे वही तुम्हें मिलेगा, जितना अंजाम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। लेकिन हम उन चीजों की तरफ तवज्जो हाथ नहीं रखते। मेरे अजीजों, ये दौर बहुत खराब, बद से बदतर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। काश अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप को दीन की राह पर चलाने के लिए, सिरात मुस्तकीम से वाबस्ता रहने के लिए, अइम्मा के रास्ते पर गामजन रहने के लिए काश हम कोशिश करें। जैसे किसी बच्चे की बात बहुत अच्छी थी कि जब उसने एक निबंध लिखा था, एक ऐसे लिखा था, जब उसकी टीचर ने कहा था कि जाओ एक मोबाइल के ऊपर निबंध लिख करके आना, एक ऐसे एक मजमून लिख करके आना, तो उस बेटे ने लिखा था काश मैं मोबाइल होता। सोचिएगा मेरी बात, उसने जो लिखा काश मैं मोबाइल होता, क्यों लिखा? उसने कहा कि क्योंकि इसी मोबाइल के चक्कर में मां मुझसे ज्यादा मोबाइल को हाथ में लिए रहती है,
बाप मुझसे ज्यादा मोबाइल को हाथ में लिए रहता है, भाई मुझसे ज्यादा मोबाइल को हाथ में लिए रहता है, बहन मुझसे ज्यादा मोबाइल से मुतवज्जे होती रहती है। कहा इसका मतलब क्या हुआ? कहा इसका मतलब मैं इंसान ना होकर के अगर मोबाइल होता तो कम से कम माँ के पास तो होता, कम से कम मोबाइल होता तो बाप के पहलू में होता, मोबाइल होता तो भाई के हाथों में होता, मोबाइल होता तो मालूम दिया बहन के साथ होता। तब इंसान सोचने लगा, और उसके बाद जब यही टीचर ने चेक किया तो पता चला ये किसी और का बच्चा नहीं, खुद उसका अपना बेटा है। तब एहसास हुआ कि हम लोग मोबाइल के चक्कर में अपनी औलादों से गाफिल होते जा रहे हैं, हम लोग मोबाइल के चक्कर में अपनी औलादों से दूर होते जा रहे हैं, मोबाइल के चक्कर में अपनी औलादों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, और जब तक वक्त नहीं देंगे तब तक औलादें मां की आगोश की गर्मी को, बाप की गोद की गर्मी को, उनके मजबूत हाथों की गर्मी को कैसे महसूस करेंगे? क्योंकि खाली खिला देना, पिला देना, आराम से बिस्तर मुहैया करना सोने के लिए, यही खाली फरीजे में से नहीं है। यानी उसको वक्त दो, उसको शफकत भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, वक्त भी चाहिए, तब वो रिटर्न तुम्हें तहजीब करेगा, अखलाक करेगा, किरदार करेगा, तब उसके अंदर दीदारी आएगी। लेकिन एक तरफ आप मोबाइल लिए पड़े रहिए तो मालूम दिया जैसे चार अजनबी एक कमरे में इकट्ठा कर दिए गए हों और चारों अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो अब आप सोचिए, एक ही घर में रहने वाले चार लोग कनेक्ट किससे हैं? जो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, और दूर किससे हैं? जो बराबर में मीटर के फासले पर बैठा हुआ है, उससे गाफिल है। एक सलवा पढ़िए सब मिल के। बस ऐसे ही इबादतें हैं, नतीजा दे रहा हूं, ऐसे ही इबादतें हैं कि मालूम दिया हम एक बार करबला चले गए ज़ियारत करने के लिए, क्या हो गए? करबलाई। करबलाई उस वक्त लिखा जाता था जब हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में इंसान दाहिना हाथ या बायां पैर या दो में से एक गया, एक शहीद हो गया, अपने बच्चों के सीने पर पैर रख करके गए, लाशों पर पैर रख करके गए, यानी मुश्किलात के साथ जब जाते थे तब इंसान लगता था कि साहब ये करबलाई हैं, इनकी अजमत है, क्योंकि ये कुर्बानियां दे करके करबला गए हैं। आज हम कौन सी कुर्बानियां दे करके जा रहे हैं? और एक मोहतरम मौला की ज़ियारत कर ली, अपने आप को करबलाई लिख दिया, अमल में, किरदार में, सीरत में कितना किरदार पाया गया पता ही नहीं, करबलाई हैं। इसकी जरूरत नहीं है इमाम को। इमाम को सिर्फ इतनी जरूरत है कि तुम कैसे हो, मेरा चाहने वाला कैसा है, मेरा मानने वाला कैसा है, मेरा शिया कैसा है। इमाम को इससे मतलब है। शबे जुमा अगर हम अपने इमाम के लिए खड़े होकर के ज़ियारत वारसा ना पढ़ पाए, कैसे शिया? खाली तुम्हें पैदा किया गया है बिजनेस करने के लिए, तुम्हें पैदा किया गया है खाली लाहौर लश्कर और माल मकान और ये सब बनाने के लिए, कि तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया गया। आप सोचिए, बहलूल का जमाना था, इमाम हसन अस्करी इस्लाम खड़े रो रहे थे, कहा क्यों रो रहे हो? समझिएगा, मैं आपके लिए खिलौने ला देता हूं। कहा मुझे खिलौने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे खिलौना खेलने के लिए नहीं पैदा किया है। कहा फिर? कहा अल्लाह ने मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और आज हम इतने गाफिल हो गए हैं कि 3 रकात मगरिब की नमाज नहीं पढ़ पाते, इतने गाफिल हो गए 4 रकात इशा की नमाज नहीं पढ़ पाते, इतने गाफिल हो गए हैं कि रात 2-2 बजे तक तो जाग लेंगे, लेकिन सवेरे 5:15 बजे के अंदर तक में फजर की नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। सोचिए जरा सा। और उसके बाद बेहतरीन बिजनेसमैन भी हैं, और उसके बाद जब लॉस होता है, मौलाना साहब कोई दुआ बता दिए, लॉस बहुत हो गया। अरे जाओ, जब राब्ता अपना अल्लाह से तोड़ा है तो अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह यही करता है।
کہ کبھی کبھی متوجہ کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے اس کو نقصان سے ہمکنار کرتا ہے، دو چار کرتا ہے، تاکہ وہ پلٹ آئے اللہ کی طرف۔ اور ہم نماز سے ہی کہتے ہیں صاحب ہمیں کام ہے، جبکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کام سے کہو ہمیں نماز پڑھنی ہے، وقت نکالو اس کے لیے، کیونکہ وقت کہیں سے نہیں آتا ہے۔ جب ایسے کر لو گے تب جا کر کے، جب تم اللہ اکبر کی تکبیر کہو گے تو یہ تکبیر ساتوں آسمان سے ٹکرا جائے گی، اور جب ساتوں آسمان سے ٹکرائے گی تو اب فرق نہیں کرتی کہ یہ تکبیر تم نے خوشی میں کہی تھی یا غمی میں کہی تھی، بلکہ اللہ ان تکبیروں کو بھی سن لیتا ہے، اور اس بار یہی کہتا ہے فرشتوں دیکھو تم خالی حمد میں ہو، تم خالی ثنا میں ہو، تم خالی رکوع میں ہو، تم خالی سجود میں ہو، تم قیام میں ہو، تم قعود میں ہو، لیکن یہ میرا بندہ دیکھو مکمل میری عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ فخر و مباحت کس پہ کرے گا؟ جب ہم اس کے لیے وقت نکالیں گے، اور جب ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے تو اس کے اثرات اس کی فرما برداری کر کے ظاہر ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ صلوات علی محمد۔ جو لوگ باہر ہیں اندر آ جائیں، جو لوگ پلتھی مار کر کے بیٹھے ہیں، بہت جگہ ہے، گنجائشیں ہیں، تاکہ جو لوگ دروازے کی چوکھٹ پر بھی بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ جائے، تاکہ بعد میں دقتیں نہ ہو، ورنہ جب جماعت کھڑی ہوگی تو ایڈجسٹمنٹ میں دقتیں ہوں گی۔ تو بہرحال تھوڑا تھوڑا سمٹ کر کے اندر بیٹھیے تاکہ دقتیں نہ ہو۔ ایک اور صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ علیہ السلام۔ بہرحال کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ دوسرے خطبے کا عنوان یہی ہے کہ توحید کا ہمارے اوپر اثر۔ یہ توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید ہوتی ہے یعنی جب انسان کو خدا مل جائے، جب انسان کو خدا مل جائے، اور خدا ہر کسی کو بآسانی ملتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ اگر ہر کسی کو خدا ملا ہوتا تو امام حسین علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ پروردگارا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ ہے درس یہ توحید کا یا نہیں ہے؟ یہ بہترین توحید کا درس ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا واقعی ہم نے خدا کو پایا ہے؟ کیا واقعی خدا ہمارے وجود میں، ہماری روحوں میں، ہماری روحانیات میں رچا اور بسا ہے؟ کیا واقعی خدا ہماری روحوں میں ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے، ورنہ امام تو یہی کہتے ہیں صاحب پروردگارہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا؟ چونکہ آج 9 ذی الحجہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کا مطلب
यही कि इमाम हज को छोड़ते हैं और उम्रे में तब्दील करके मक्के से हिजरत करते हैं किसकी तरफ? अपने हकीकी और आखिरी सफर की तरफ, कि जो आपने वादा किया था, वादे तिफली। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम लोग, यानी अभी हम अपने यहां बच्चियों को मुहर्रम की तैयारी करा रहे हैं मजालिस की, कि ये अय्याम अज़ा के इस्तिक़बाल माहे अज़ा से लेके 12 मुहर्रम तक के लिए इन्हें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। आप गौर कीजिएगा, जब इंसान किताबों की तरफ जाता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर यानी इमाम की बातों को समझना है। इमाम जब मदीने से निकल रहे थे, मोहम्मद हनफिया को बेहतरीन वसीयतनामा लिखा और उसके बाद उसमें लिखने के बाद कहा कि साहब मैं निकल किस लिए रहा हूं, मैं इसलिए तमाम शराइत बयान करने के बाद उसके बाद मोहम्मद हनफिया को मदीने में अपना नायब बना करके छोड़ दिया ताकि तुम हमें बाखबर करते रहना। इसके बाद आप जानते हैं, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मक्के से ये चले हैं तो चलने के बाद रास्ते की जो मंजिल है करबला तक में जहां इमाम ने कयाम किया है उसको मंजिल कहा गया है। तो एक मौका आता है कि जहां पर इमाम ने मोहम्मद हनफिया को एक खत लिखा और लिखने के बाद कहा, ये मोहम्मद हनफिया ये तुम्हारे नाम खत है, तुम हमारे अक़वाम में से, हमारे कबीले में से बनी हाशिम के लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा दो और ये कह देना कि जो भी आना चाहता है आ जाए, जो आ जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, जो नहीं आएगा वो नाकाम हो जाएगा। अब जरा सा पहले वाले वसीयतनामे को और इसको दोनों को मिलाइए, नतीजा क्या निकलता है। आज हम लोग जरा सा 2 हाथ का मातम कर लिया, देव उठा लिया, ठीक है, इसकी अफजलियत अपनी जगह पर है, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी वजह से वाजिबात को छोड़ दिया जाए ये भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां सबसे पहली चीज टारगेट सिर्फ नमाज को बनाया जाता है, जबकि यही इमाम जिसका हम मातम करते हैं, यही इमाम कहता है इन्नी उहिब्बु सलाह, यानी मैं नमाज से क्या करता हूं, इश्क करता हूं। जिससे हमारा इमाम इश्क करे, हम उससे कितने गाफिल, सोचिए जरा सा। यानी मैं इश्क करता हूं, ये इमाम के जमालात हैं। और उसके बाद यानी हमारी कंडीशन और कैफियत क्या होती है, हम इस चीज को बयान नहीं कर सकते। और उसके बाद इमाम के बेहतरीन वो है, तो जब इमाम ने अपने कौम और कबीले वालों को कहा अगर तुम में से जो हम तक आना चाहे, जो हमसे मिल जाएगा, मुल्हक हो जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। इसका मतलब क्या था, यानी इमाम हुज्जत तमाम करना चाहते थे ताकि किसी भी इंसान को ये मौका ना मिले कि वो कह दे साहब अरे वो तो मौला मक्के में थे, मदीने में होते तो हम उनके साथ चलते। बहुत सारी चीजें क्या हैं, गौर व फिक्र करने की चीजें होती, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजों को गौर व फिक्र नहीं कर पाते हैं। लिहाजा यानी चूंकि अय्याम अज़ा आने में बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं है, लेकिन हम जरा सा गौर व फिक्र करें और देखिए हम अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। क्योंकि इमाम ने यानी चाहने वालों के लिए एक रास्ता खोल लिया था, ताकि तुमने मुझे खत लिखा है, मैं हुज्जत तमाम किए देता हूं, मुस्लिम इब्न अकील को तुम्हारे पास भेजता हूं। आप देखिए, इसके अलावा अगर आप गौर व फिक्र कीजिए तो आप देख, हज के मौके पर
रहबर मुअज्जम हजरत आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनई साहब का जो मैसेज है हुज्जाज किराम के लिए, पढ़िए। देखिए आपने कितनी बातें नसीहतें की हैं हाजियों के लिए। हज क्यों रखा गया था? ताकि हज इसलिए रखा गया था, समझिएगा, हज इसलिए रखा गया था कि हज के मौके पर सारी दुनिया के लोग जब इकट्ठा हो जाएं, अलग कौम मिल्लत कबीले के लोग, तो वहां पर आकर के तुम्हें हमारी मजलिसों को बर्पा करना है। पांचवें इमाम की वसीयत है, तुम्हें वहां पर जाकर के हमें मैदान अराफात में जाकर के हमारी आजादारी को बर्पा करना है। और इसके लिए इमाम ने कहा कि हम इतना वक्फ किए जा रहे हैं ताकि इसकी आमदनी से तुम ये करना ये करना ये करना। तो अब पता चला कि जहां पर मैसेज पहुंचाना है इबादत के जुमरे में, कि हज के जुमरे में यानी आजादारी से गाफिल ना हो जाना और आजादारी के जुमरे में इबादत से गाफिल ना हो जाना, इन दोनों चीजें लेकर के चलनी है। और यही वजह है कि आप जरा सा यानी गौर व फिक्र कीजिए, तब आपको अंदाजा होगा कि इमाम ने जिसको सफीर बनाया था उसके अंदर सूझबूझ क्या थी, उसके अंदर सारी चीजें क्या पाई जाती थी, उसके अंदर किरदार कितना पाया जाता, सारी चीजें थी। और आप ठहरिएगा क्योंकि आज रोज़े अरफा है। रोज़े अरफा के जो दुआ है और आमाल है ये हम 5 बजे कराएंगे। कै बजे? 5 बजे, ताकि जो दुआए अरफा है, मारिफ है, इसको हम क्या करें? महसूस करें, पढ़ें, गौर व फिक्र करें। कुछ अरबी पढ़ेंगे, कुछ उर्दू पढ़ेंगे, ताकि आप समझिए कि हमारे इमाम ने कहा क्या क्या है। इसके अलावा यानी जुमे के बाद जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम की मजलिस होगी, उसमें ठहरिएगा क्योंकि ये दीबाचे करबला है जिसका हमें शोक मनाना है, मुकद्दमे करबला है जिसका हमें शोक मनाना है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतब इमानिया में होगी। आप तशरीफ लेकर के आइएगा और इंशाअल्लाह कल यानी जो बकरीद की नमाज होगी वो ठीक 8:30 बजे होगी। आप उसमें भी तशरीफ लेकर के आइएगा ताकि किसी को दिक्कत ना हो और इंशाअल्लाह यानी किसी को तकलीफ आपकी ज़ात की वजह से नहीं होनी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।